institutions such as parliament and judicial. प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा. We have play something song. The participant number 1, Chalem Bongtai, to present her view on the topic. सुप्रभात सभी को. आदरणीय विधायक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, जिला परिषद सदस्य, जूरी सदस्य, शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों, मेरा नाम चालेम बोंगताई है. मैं द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विभाग रंगफ्रा गवर्नमेंट कॉलेज चांगलांग से हूँ. आज विकसित भारत के अवसर पर मैं आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए उसके सबक विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ. 25 जून 1975 को भारत ने अपने लोकतंत्र के सबसे कठिन दौर का सामना किया. 1971 की इमरजेंसी इंडियन हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट थी, जो आज भी 50 इयर्स का बाद भी हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कितना स्ट्रॉन्ग है और हमें उसे प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है. बिफोर 1975 इंडिया फेस कर रहा था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट. उसी समय जयप्रकाश नारायण ने करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया. फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर किया. फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑन 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की. Then Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency under the Article 352 of the Constitution. Within hours, thousands of opposition leaders were arrested. Newspaper has to show their reports to the government before publishing. Voices of criticism were silenced. For 21 months, world's largest democracy has to face one of its darkest periods. Yet some people argue that during those periods, change ran on time, officers functioned strictly, and discipline improved. But we must question ourselves. Is discipline greater than freedom? Is silence better than disagreement? And can fear ever build a confident nation? You wake up tomorrow and your voice no longer matters. Good evening, everyone. Today, I want to speak about something that India, the world's largest democracy, had experienced for 21 months. Something that we are all concerned about. Imagine you wake up tomorrow and you pick up a newspaper, but half is missing. You want to criticize the government, but you are afraid. You want to protest, but you could be arrested without trial. But in 1977, India truly gained its strength when the public finally decided to come together and act through a simple act of voting, and where democracy was restored.
However, importance lies not in the past but in the present. As India moves towards Viksit Bharat by 2047, development cannot be measured only through economic growth. A truly developed nation is one where institutions remain independent, citizens remain confident, and disagreements respected as a democratic right. Someone with very good body language, someone with very good vocal tone, someone with very good structures, but everyone needed some improvements in their way of presentations. अरे हमारा लीडर ने तो ये बोला, आर्टिकल कौन सा कोट कर दिया वो है बोल के. Being a civil servant recent. कामयाबी मिलने के लिए कभी भी आपको शॉर्टकट लेने का रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। आपको कामयाबी मिलने के लिए, कामयाबी पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत आपको इसी कॉलेज में 3 साल के अंदर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जो है भविष्य वो बहुत उज्जवल रहेगा। इसके लिए मैं सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। आप यहाँ पे आए हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, अपने उस माता पिता को याद कीजिए जिन्होंने आपके लिए इतनी संघर्ष करके आपको जो है पॉकेट मनी आपको अवेलेबल जो कराता है। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा आज यहाँ में एट गवर्नमेंट रन फॉर कॉलेज चंगल। तो आज का जो मेन आपका ये टॉपिक था कि आपका विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट सेशन 2025-26 and that is the government, that is the program of the government, the Ministry of Youth Affairs and Sports ना जो आपका ये गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। ये मेन मुद्दा था कि एक्चुअली मैंने रिगार्डिंग द इमरजेंसी that was declared very unexpectedly and very unfortunately by the then INC government since 1975 at the advice of purely at the advice of the then Prime Minister late Srimati Indira Gandhi, and at during that very time all the opposition leaders were arrested and forcefully arrested and forcefully imprisoned, and that emergency actually that tarnished the actual value of democracy across the country, and that was such a day that still we call it as a black day, that the country had ever witnessed such a day, such a black day. And in that very connections, the government has decided to organize this type of youth parliament. Youth parliament is with that motive and agenda to make, especially young the students well aware about the emergencies that was declared unconstitutionally by the then INC government under the Prime Minister of late Srimati Indira Gandhi. So successful, and that all the participants, the students who took part in the competition, and they did their best, and all, I must compliment that all did their best, and all the participants are the winner. That's why today we have witnessed such an event, and I appeal to the government that this type of events will be organizing in the that one मैंने continuous basis में उसको मैंने ये organize करते रहना है आगे, so that जितना भी देश में जो युवा है, youngsters है, उन लोगों को मैंने पता चले कि what was the emergency and what is the actual value of democracy. उसको जितना youngsters से, students है, especially they have to know about it. आज हम लोग ने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट
कंडक्ट किया है, होस्ट किया है। हम लोगों का जो रंगफ्रा गवर्नमेंट कॉलेज चांगलांग है, एक नोडल इंस्टीट्यूट है ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का। इसके लिए हम लोग ने आज होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है और सक्सेसफुल भी रहा। और हम लोग का टोटल पार्टिसिपेंट था 107 और हम लोगों का जूरी मेंबर भी आए हैं। जैसे SOP का हिसाब से जूरी मेंबर चाहिए था हम लोगों का, जैसे MLA चाहिए था, ZPC चाहिए था और हम लोगों का जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए रिटायर्ड या सर्विंग, और हम लोग का एकेडमिशियन चाहिए था, एक्सपर्टीज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस, इस तरह का। तो हम लोगों का आया है जूरी मेंबर, हम लोगों का साउथ ऑनरेबल हम लोग का MLA हमजोंग टंगहा सर, साउथ 52 साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चांगलांग, वो आए हैं एक जूरी मेंबर के लिए। और हम लोगों का एक ZPM मैडम सदनेम तेची, वो भी आए हैं एक जूरी मेंबर की थ्रू से हिसाब से। और हम लोगों का एक जूरी था हम लोग का, जिस तरह से SOP का हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए था, उसमें से हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर दुसु डी जेंडा सर जो आए हैं एक जूरी मेंबर के लिए। और एक था हम लोग का एकेडमिशियन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस का, डॉक्टर अन्ना नारायण जी, वो भी हम लोगों का जूरी मेंबर थे। और हम लोगों का टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है, ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट तो 100 अबव था और जो ऑडियंस था सब मिला के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 200 से ज़्यादा था। और हम लोगों का जो पार्टिसिपेंट कंपटीशन अपना अपना व्यू शेयर किया टॉपिक का बारे में, और उसमें हम लोग टॉप 10 विनर्स हम लोगों को मिला। और अभी ये टॉप 10 विनर्स स्टेट लेवल में जाएगा, वो लोग स्टेट लेवल में जाएगा अभी वो लोग प्रेजेंट करने के लिए। ये हम लोगों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ये कंपटीशन था, ये बहुत एक यंग माइंड को आगे लाने के लिए, जितना हम लोग का जो अच्छा ब्रिलियंट टैलेंटेड यूथ है वो लोग आगे आके हम लोग का देश को कैसा आगे बढ़ाएगा, हम लोग का विकसित भारत का विजन को सफलता कराने के लिए ही ये प्रोग्राम जो रखा गया है। हम लोगों का ये जो यूथ पार्लियामेंट है, हम लोग का जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, पार्लियामेंट का जो वाइब्स को, वो आइडियाज़ को, पार्लियामेंट कैसा चलता है, ये सब का बारे में वो लोग सीखने मिलता है। तो हम लोगों का भी यहाँ ऐसा होता है, जूरी मेंबर होता है, स्पीकर होता है, और वो लोगों को अपना व्यू टॉपिक का बारे में शेयर करना पड़ता है। तो ये सब एक अच्छा लेसन है वो लोग के लिए भी, ये किस तरह से असेंबली चलता है, पार्लियामेंट चलता है, ये सब का बारे में भी वो लोग बहुत सीखने मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app